Hello students, I am Sudhanshu Bajaj, Managing Director at Scholars Academy. I will be taking on a very interesting topic today called as Gauss theorem. It is a topic which is there in electrostatics, but this particular section of physics, this particular section of electrostatics creates a lot of confusion with students. And in today's lecture and in today's demonstration, we will clear all the topics related to Gauss theorem. Let us start with today's topic called as Gauss theorem. Gauss theorem is basically based on the electric flux. What is electric flux? To start off with, let us understand the meaning of word flux. The meaning of word flux. Flux means flow. Flow of liquid, flow of field lines. So therefore, electric flux will mean flow of electric field lines. Suppose we have a region with us, an enclosed region, and in this enclosed region some electric field lines are passing through it. Then we define as that electric flux is the number of field lines which are passing through this enclosed region. Right. Now before I actually proceed on to Gauss theorem, just to put certain inputs that what are the properties of electric field lines. Let us see some of the important properties of electric field lines. Basically, electric field lines is a very hypothetical concept. As you all know that we cannot see any field line. Now when you were young, when you were in class 8th or 9th, you have plotted magnetic field lines for a bar magnet. And how do you used to do it? कैसे करते थे? We used to take a magnetic compass out over here and then join all the pointers of the magnetic compass, and therefore we used to obtain magnetic field lines something like this. Now, magnetic field lines was a hypothetical concept, and so is electric field lines also. It is a hypothetical concept. Now, what are exactly electric field lines? Suppose we have a charge out here. हमने यहाँ पे क्या रखा है? मैग्नेटिक कंपास. क्या रखा है? मैग्नेटिक कंपास. और उस मैग्नेटिक कंपास के पॉइंटर्स को ज्वाइन करते 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई हमारे पास. उसी तरह से यहां पे अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और हम उस पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? यहां पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देंगे. टेस्ट चार्ज 1 कूलम का, और इस टेस्ट चार्ज की जो डायरेक्शन होगी मोशन की इस तरफ है, तो यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब अगर ये टेस्ट चार्ज यहां होगा तो मोशन की डायरेक्शन यहां होगी. यानी कि इन पॉइंटर्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन आएंगी वो इस तरह से आएंगी. दिस इज हाउ we can plot the electric field lines for any given charge. ये क्या है? किसी भी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. तो हमने एक बेसिकली स्केच दिया. मैं एक बात आपको यहां बताना चाहूंगा कि फील्ड लाइंस किसी भी तरह की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, या चाहे वो ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस हो, हाइपोथेटिकल होते हैं. सिर्फ हमारी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं, क्योंकि अगर यहां कोई चार्ज रखेंगे
तो हमें बात क्लियर हो जाएगी, वो चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ ही जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, अर्थ की ग्रेविटी, हमने किसी पार्टिकल को यहां पे छोड़ा और ये पार्टिकल नीचे गिर गया, तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कहां होगी? नीचे की तरफ। सो फील्ड लाइंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ हमारी मेंटल सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। आइए लेट अस सी व्हाट आर सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ब्रेक। Let us have a quick recap on what are the properties of electric field lines. I am again emphasizing, why do we need to know the properties of electric field lines? Because Gauss theorem is based on electric field lines, electric flux. Hence we must know what are the properties of electric field lines. Let us have a recapitulation on a fast mode. One, that we have a positive charge out here. The electric field lines will move out of the positive charge, and if there is a negative charge, electric field lines move in. That means we can quickly say that electric field lines are directed in outward direction for a positive charge and are directed in inward direction for a negative charge. Electric field lines are directed outward in a positive charge and directed inwards for a negative charge. Second, suppose we have a positive charge and a negative charge kept near to each other. Then the electric field lines which are emitting from here must enter the negative charge out here. So what will be the shape and pattern of the electric field lines out here? It will be something like this. Right? This is the pattern of electric field lines when two charges of opposite nature are kept near to each other. Now when two positive charges are kept near to each other, how will be the electric field lines? Let us see. You can also see the electric field lines, as I said, by keeping a test charge, और जिस डायरेक्शन में वो टेस्ट चार्ज जाएगा, जहां उसकी नेट डायरेक्शन होगी, वो ही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं एक टेस्ट चार्ज हमने यहां रख दिया, इसकी वजह से फोर्स ऐसी हो गई और इसकी वजह से फोर्स ऐसी हो गई, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ ऐसा हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी वो कुछ ऐसे जा रही होंगी, इस तरह से, और बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और आप देख सकते हो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो दोनों से सिर्फ अवे होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत सारी किताबें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इसी तरह से दिखाती हैं, बट जानते हो यहां एक कमी है, यहां पे एक छोटी सी कमी है, वो ये है कि इतना पोर्शन वेकेंट नहीं होता है। बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट ही होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। आप ही जानते हो, कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, बीच में एक पॉइंट आएगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो इसके लिए बाकी सभी पॉइंट्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, बट वो जनरली लोग नहीं दिखाते हैं, बट हम यहां पे उसको शो करेंगे कि सिर्फ एक ऐसा एक ही पॉइंट होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्केच्ड व्हेन पॉइंट चार्जेस आर देयर। ब्रेक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect with each other. The reason with that is, suppose electric field lines we show as intersecting lines, then at this point we draw the tangent और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन हो जाएगी, एंड वी ड्रॉ टेंजेंट और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की? नहीं पॉसिबल है, और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो
जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखा रहा हूं। एक पैटर्न ये वाला है और एक पैटर्न थोड़ा स्पेस्ड पैटर्न है। यहां स्पेसिंग ज्यादा है, यहां स्पेसिंग कम है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E A, और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी EB, EA will be greater than EB. The reason for that is that here the electric field lines are less spaced, they are tight है, या यूं कहूं कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां ज्यादा है, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो कम है, खुले। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट की। ये बात बहुत लॉजिकल भी है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? हम एक सर्कल बनाते हैं रेडियस r का, और ये कहते हैं कि इसमें n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो इस सर्कल में इंक्लोज हो पा रही हैं। Then the magnitude of electric field at any of these points will be equal to n upon the surface area 4 pi r square, where r is the radius. अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्सेंट्रेट करने वाली, वो ये है कि हमने यहां जो स्पेसिंग रखी है वो यूनिफॉर्म है। बट इससे क्या फर्क पड़ेगा अगर यूनिफॉर्म है? अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म होगी और खुली होगी, कहीं खुली है कहीं टाइट है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाओगे, हर जगह अलग अलग होगी। लेकिन अगर स्पेसिंग यूनिफॉर्म है तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर है, और कितनी है? n/4 pi r स्क्वायर है। अब मान लीजिए जैसे हम यहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि 5 लाइनें हैं जो इस सर्कल में, और यहां भी अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो 1 2 3 4 5 लाइनें हैं जो सर्कल में, और रेडियस जो है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहां पे? EB इज इक्वल टू n/4 pi r स्क्वायर B, और यहां पे क्या हो जाएगा? A. नाउ इट इज वेरी क्लियर कि RB इज greater than RA. तो 1/r square B is lesser than 1/r square A, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट B will be lesser than इलेक्ट्रिक फील्ड एट A. तो एक बात ये प्रूव हो गई कि अगर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी, ब्रेक। सो लास्ट में हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू n अपॉन द सरफेस एरिया। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ जाएंगे। दोस्त, ये गॉस थ्योरम की वो एक ऐसी कड़ी है जिससे गॉस थ्योरम बहुत आसान होगा, डिराइव इसी से होगा, दैट किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो स्ट्रेंथ, और उसे उस रीजन के एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो उस रीजन से पास करती हुई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम निकाल पाते हैं। इज दैट क्लियर? अगर हमारे पास कोई भी रीजन है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E सब जगह और एरिया है A, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस रीजन से पास करती हुई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमें पता चल जाएंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे बेसिकली गॉस थ्योरम प्रूव होगा। अगला जो एक प्रॉपर्टी है हम पढ़ेंगे वो ये कि अगर कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to a given surface area, यानी कि इस
सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वो ऐसा होगा। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दोस्तों, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है गॉस थ्योरम को डिराइव करने में। आइए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक किस तरह का सरफेस और यहां पे कई सारे इंक्लोज्ड चार्जेस हैं। मैं एक बात बता दूं यहां पे फ्रेंड्स कि हम जो गॉस थ्योरम डिराइव कर रहे हैं वो एक बहुत एलिमेंट्री वे से डिराइव करेंगे। हो सकता है कि बुक्स के साथ ये टैली ना हो, लेकिन ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो यही सही डेरिवेशन मानी जाती है। तो हम एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ लॉजिक इसको डिटेल में समझेंगे। मैं एक पूरा सरफेस ले रहा हूं ऐसा, और हमारे पास कई सारे इंक्लोज यहां चार्जेस हैं। हम कहीं भी बात करें, सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कहीं यहां पे होगी E1, यहां पे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहां होगी E2, अगर हम यहां बात करें शायद इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगी E3, क्योंकि एक्चुअली चार्जेस भी सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है और सरफेस भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। अब अगर मैं निकालना चाहता हूं टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through this entire surface, we want to find the total number of field lines through the surface। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ जाएंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारा एरिया तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक इस सरफेस के एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और मान लेते हैं ये एरिया है DS1। एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसी भी सरफेस के। हमारे पास अगर कोई भी सरफेस है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। सपोज अगर यही सरफेस है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, एरिया वेक्टर। मान लेते हैं ये वाला एंगल है θ1। इधर के लिए मान लेते हैं ये DS2 है और ये एंगल है θ2। यहां पर DS3, ये वाला एंगल θ3। यहां पर DS4 और ये वाला एंगल θ4। तो इतने पोर्शन से पास करती हुई फ्लक्स कितनी होगी, द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस will be equal to E1 DS1, ऐसे होगा। और इस सरफेस से पास करती हुई फ्लक्स कितनी होगी, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आते हैं जो उस पर्टिकुलर रीजन से पास कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इस बात को। इस रीजन से पास करती हुई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इतनी हो जाएंगी, इस रीजन से पास करती हुई फील्ड लाइंस इतनी हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे
जो सरफेस पे होंगे, और इसको हम क्लब करके EDS लिख सकते हैं। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू द इंटायर सरफेस। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। हमें लग रहा है कि ये एक सही एक्सप्रेशन है। क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सही एक्सप्रेशन है? लेकिन मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स, यहां पर कुछ करेक्शंस करनी बाकी है। ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अब सोचोगे सर क्यों? हमने तो बहुत लॉजिकल बात करी है कि हमने हर एक पोर्शन को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करा है और इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई किया। हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो आ जानी चाहिए, तो फिर ये गलत क्यों है? इसका रीजन है, मैं आपको बताता हूं। आइए डिटेल में जानते हैं कि वाई इज दिस नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस ब्रिक। मैंने पढ़ा था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एक सरफेस के एरिया वेक्टर से पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन क्या यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस एरिया वेक्टर के पैरेलल है? नहीं ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करना पड़ेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। बात दोबारा ध्यान से सुने। हमने अभी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पे है। तो हमें यहां जो उसका कंपोनेंट लेंगे विच विल बी पैरेलल टू DS4, that component will be contributing for the effective number of field lines. तो ये क्या हो जाएगा? E4 cos थीटा 4। उसी तरह से इसका कंपोनेंट भी होगा E2 cos थीटा 2। ये भी जो कंपोनेंट होगा E3 cos थीटा 3। ये कंपोनेंट भी E1 cos थीटा 1। तो यहां पे करेक्शन आ जाएगा सभी फैक्टर्स में, साथ में cos थीटा 1, cos थीटा 2, cos थीटा 3, cos थीटा 4 यह आ जाएगा। और एंड एक्सप्रेशन में भी यहां एक cos थीटा इंप्लीमेंट हो जाएगा। हम इसको पहले भी बता सकते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं बताया ताकि ये एक फैक्टर आपके दिमाग में हमेशा घुस जाए, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टू बी टेकन पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। सो फाइनली हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया फ्लक्स का, वो आया इंटीग्रेशन EDS cos थीटा। अब एक बात और, ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। व्हाई डेफिनेट इंटीग्रेशन? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओवर द इंटायर surface, and if you have to find the electric field lines over the entire surface, that means it has a definite starting point and it has a definite ending point also. But since the shape of this region
is unknown to us. It is not known to us. Therefore, we cannot put the limits. Hence, to facilitate and to ensure that we tell you that it is a definite integration, we place a circle over here. This circle means that we are integrating this expression over the complete surface. This circle tells that we are integrating this expression over the complete surface, and hence this is also called as surface integral. Surface integral. Why? Because we are integrating it over the entire surface. Hence, this is the expression of flux through any enclosed surface. Now students, E ds cos theta can be well written as